Hare Nama, Hare Nama eva kevalam, Kalo nasteva, nasteva, nasteva gatiranyata. नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा प्रभु जी, माता जी सभी के चरण में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु। भागवत महत्व पाद যদিও প্রথম দ্বিতীয় তৃতীয় তুর্য কথিত যদুর নাভিস্ততা পঞ্চম এব ষষ্ঠ ভুজান্তরং যুগল ততান্নয় কণ্ঠস্থ রাজ নবম যদিও মুখার বিন্দম দশম প্রফুল্লম একাদশ যশ ললাট পট্ট শিরোহ পিতো দ্বাদশ এব ভাতি তমাদিদেব করুণানিধানম তমাল বর্ণ সুহিত অবতারম অপার সংসার সমুদ্র সেতু बजामो भागवत स्वरूप। हरे कृष्णा प्रभु जी, माता जी सभी के चरण में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद स्वरूपा माता जी। सॉरी स्टार्ट किया, बहुत सॉरी। हरे कृष्णा। तो मुखम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरम यत्कृपातमहं वंदे श्री गुरु दीनतारिणम परमानंद माधवम श्री चैतन्य ईश्वरम। तो आज हम तीसरे स्कंद के 28वां अध्याय जो है वो शुरू करने वाले हैं। और ये अध्याय का शीर्षक है कपिलास इंस्ट्रक्शन ऑन द एग्जीक्यूशन ऑफ डिवोशनल सर्विस। तो मतलब कपिल मुनि जो है अपनी माता को कि भक्ति जो प्रोसेस, जो भक्ति का सेवा वो कैसे करना है, इसके ऊपर वो उपदेश अभी देना शुरू करने वाले हैं। तो इन अ सेंस मतलब अगर हम देखेंगे तो ये अगर पूरा अध्याय एक तरह से हमको भी मतलब किस तरह से भक्ति करना है इसके ऊपर हम मनन कर सकते हैं। तो आज का पहला श्लोका हम स्टार्ट करेंगे। तो श्री भगवानुवाच योगस्य लक्षणं वक्षे सबीजस्य निपात्मजे मनो एनैव विधिना प्रसन्नं याति सत्पटं पतम्। Sri Bhagavan Vacha, the personality of Godhead said, Yogasya, of the yoga system, Lakshanam, description, Vakshe, I shall explain, Tabijasya, authorized, Nipa Atmaje, O daughter of the king, Mana, the mind, Ena, by which, Eva, certainly, Vidhina, by practice, Prasannam, joyful, Yati, attains, Sat Patan, the path of absolute truth. Translation and purport by Divine Grace, A.C. Bhakti Vedant from Srila Prabhupada. Srila Prabhupada ki jai. The personality of Godhead said, My dear mother, O daughter of the king, now I shall explain to you the system of yoga, the object of which is to concentrate the mind. By practicing this system, one can become joyful and progressively advance towards the path of the absolute truth. Purport: the yoga process explained by Lord Kapila Dev in this chapter is authorized and standard, and therefore these instructions should be followed very carefully. To begin, the Lord says that by yoga practice, one can make progress towards understanding the absolute truth, the Supreme Personality of Godhead. In the previous chapter, it has been clearly stated that the desired result of yoga is not to achieve some wonderful mystic power. One should not be at all attracted by such mystic power, but should attain progressive realization
on the path of understanding Supreme Personality of Godhead. This is also confirmed in Bhagavad Gita, which states in the last verse of 6th chapter that the greatest yogi is he who constantly thinks of Krishna within himself, or he who is Krishna conscious. It is stated here that by following the system of yoga, one can become joyful. Lord Kapila, the personality of Godhead, who is the highest authority on yoga, here explains the yoga system known as the Ashtanga Yoga, which comprises 8 different practices, namely Yama, Niyama, Asana, Pranayama, Pratyahara, Dharana, Dhyana, and Samadhi. By all these stages of practice, one must realize Lord Vishnu, who is the target of all yoga. There are also there are so-called yoga practices in which one concentrates the mind on voidness or on the impersonal, but this is not approved by the authorized yoga system as explained by Kapila Dev. Even Patanjali explained that the target of yoga is Vishnu. Ashtanga yoga is therefore part of Vaishnava practice because its ultimate goal is realization of Vishnu. The achievement of success in yoga is not acquisition of mystic power, which is condemned in the previous chapter, but rather freedom from all material designations and situation in one's constitutional position. That is the ultimate achievement in yoga practice. परमानंद श्री चैतन्य ईश्वर हरे कृष्णा। तो अभी जो है कपिल मुनि आगे माता दिहुति को इंस्ट्रक्शन मतलब उपदेश दे रहे हैं कि किस तरह से हमको भक्ति करना है। तो हमारा पूरा एक्चुअली ये जो अपना इस्कॉन इट इज लाइक अ स्कूल, राइट। हम लोग जब स्कूल में जाते हैं हमको पढ़ाई करने के लिए जाते हैं, मतलब मैथ्स पढ़ाया जाता है, ज्योग्राफी, अलग अलग सब्जेक्ट्स है। तो अभी ये जो पूरा हमारा भक्तिमय जीवन में हम क्या पढ़ाई करने वाले हैं, वी विल लर्न। तो ये भी एक तरह का स्कूल है। यहाँ पे हम लोग क्या पढ़ाई करने वाले हैं, हम लोग भक्ति मतलब पढ़ाई कर रहे हैं जब से हम जुड़े हैं। सो दिस इज व्हाट वी आर लर्निंग। तो यहाँ पे कपिल मुनि जो है अपनी माता को कहते हैं, ओ डॉटर ऑफ द किंग, नाउ आई शैल एक्सप्लेन यू टू द सिस्टम ऑफ योगा। तो एक तरह से हम भी देखते हैं तो क्यों डॉटर ऑफ किंग, तो एक अच्छा कंसेप्ट है लाइफ में जिसको कहते हैं एम्प्टिंग योर कप। मतलब अपने अगर कोई एक पात्र है वो ऑलरेडी भरा हुआ है तो आप उसमें और ज्ञान नहीं दे सकते, राइट। तो हम भी जब भक्ति में आते हैं हम बहुत कुछ ऑलरेडी ज्ञान हमारे पास है, भौतिक जगत का ज्ञान है, फिर हम बहुत सारे मतलब कुछ भक्ति का जिसको हम भक्ति समझते हैं वो ज्ञान है। बहुत सारे हमने शास्त्र मतलब थोड़ा बहुत पढ़ा है। तो जब तक हम जो अपना ऑलरेडी भरा हुआ कप जो है उसको खाली नहीं करेंगे तो जो ज्ञान हमको यहाँ पे मिलने वाला है, शुद्ध ज्ञान जो परंपरा में, और यहाँ पे प्रभुपाद इवन कपिल मुनि कहते हैं प्रैक्टिसिंग ऑथराइज्ड ज्ञान, यहाँ पे प्रभुपाद लिखते हैं सभी जस्य ऑथराइज्ड। So, O daughter of, I explained the system of yoga, the object which is to concentrate the mind. तो ये जो बताने वाले हैं प्रभुपाद, ये जो वर्ड टू वर्ड मीनिंग में जो एक शब्द का वो कहते हैं ऑथराइज्ड। नाउ आई शैल एक्सप्लेन, और सभी जैसे यानी ऑथराइज्ड। तो ये जो ज्ञान हमको यहाँ पे मिल रहा है इट इज ऑथराइज्ड, राइट, परंपरा में जो आ रहा है। लेकिन उसके लिए क्या होना है, तो हम लोग कभी कभी अपना जो भौतिक ज्ञान ऑलरेडी हमने जो हमारे मन या हमारे जो बुद्धि में जो भरा हुआ है वो जब तक हम खाली नहीं करेंगे तब तक ये जो ज्ञान हमको अभी मिलने वाला है वो हमको समझ में नहीं आएगा। तो इस संदर्भ में भी एक सुंदर कहानी है। तो एक बार एक ऐसे एक व्यक्ति जो है एक साधु के पास जाता है और उसको कहता है कि मुझे आप ज्ञान दो। तो साधु कहते हैं कि मेरे पास आपके लिए वक्त नहीं है। तो फिर
फिर वो कहता है कि मैं तो देख रहा हूँ कि आप मतलब नॉर्मली बैठे हैं, ऐसा नहीं कि आप बहुत बिजी हो, तो ऐसे आप मतलब कैसे कह सकते हैं कि आपके पास वक्त नहीं है। तब वो साधु कहते हैं कि अ, जब तक मतलब आपको देख के मैं अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहता, क्योंकि अ, आपके पास जो अभी जो एटीट्यूड है या जो आपका भाव है, जिस तरह से आप ज्ञान लेने के लिए आए हो, तो ऐसा मुझे मतलब साधु होने के कारण उनको पता चलता है कि कौन नम्र है और कौन किसका भाव कैसा है। तो कहते हैं कि 3 प्रकार के लोग होते हैं। तो पहला जो श्रोता होता है, वो साधु कहते हैं कि केवल सुनने के लिए सुनते हैं, राइट? एक कान से सुनते हैं और फिर यहाँ से चला जाता है। तो बहुत सारे सत्संग में हम लोग जाते हैं, अटेंड करते हैं, लेकिन क्या होता है, एक कान से सुनते हैं, दूसरे कान से निकल जाता है। तो दूसरे ये है पहले तरह का वक्ता। तो ऐसे लोगों को अगर आप ज्ञान दोगे तो कोई फायदा नहीं है। वो व्यर्थ मतलब अपना श्रम श्रम ये वही केवल। तो और दूसरे प्रकार का वक्ता क्या होता है, वो ज्ञान तो सुनता है, लेकिन क्या है, ऑलरेडी उसके मन में बहुत सारा ऑलरेडी ज्ञान है। तो वो ज्ञान जो जाके वो उससे कंपेयर करता है, कंपेयर करता है, और उससे अगर उसको मेल नहीं खाता है, इफ इट इज नॉट मैचिंग, मतलब उसके ऑलरेडी जो उसका उसको जो लग रहा है कि क्या भक्ति है, उसने ऑलरेडी सोच के रखा है ऐसा ऐसा ये भक्ति है। तो ऐसे लोग भी जो क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं, और उससे उनको अगर वो टैली नहीं हो रहा है, तो वो लोग क्या करेंगे, तो जो शुद्ध ज्ञान भी जो दिया है, क्योंकि ऑलरेडी उनके अंदर जो थोड़ा कंटेमिनेटेड जो नॉलेज है उसके साथ मिक्स होके वो भी नॉलेज चला जाएगा। तो ऐसे लोगों को भी ज्ञान देके कोई फायदा नहीं है। ओके। और तीसरे प्रकार के जो श्रोता होते हैं, तो वो है जिनका मतलब अभी जो कहा था ना, मतलब जो एम्प्टिंग द कप, जो ऑलरेडी हृदय में, उनका हृदय जो है रिसेप्टिव है, दे वांट टू लर्न, और और जो परंपरा में जो ज्ञान मिल रहा है उसको लेके वो मनन करके उसके ऊपर चिंतन करके अपने जीवन में अपनाना चाहते हैं। तो ऐसे लोग जब सुनते हैं, वो कान से जाता है और बुद्धि से फिर हृदय में, और फिर हृदय में वो उसको अप्लाई करके फिर उनके जीवन में परिवर्तन आता है। तो वो कहते हैं उस व्यक्ति को, आप जब तक तीसरे श्रेणी के व्यक्ति मतलब तीसरे श्रेणी के वक्ता नहीं बनोगे, तब तक मैं आपको ज्ञान नहीं दे सकता, इसलिए मैं बिजी हूँ। तो हमको भी इस तरह का इस श्रेणी के वक्ता होना है। केवल सुन के, एक कान से सुन के दूसरे कान से नहीं छोड़ना है, और ना कि ऑलरेडी जो हमारे अंदर कंटेमिनेटेड जो नॉलेज है उसके साथ भी अगर शुद्ध ज्ञान देंगे, स्टिल इट विल गेट कंटेमिनेटेड। तो इस तरह से हमको पूरी तरह से अपना जो कुछ है वो कप को एम्प्टी करना है। अगर आप देखेंगे भी, अगर भरा हुआ अगर कोई कप है उसमें आप और कुछ नहीं डाल सकते जब तक वो एम्प्टी नहीं है। तो उसी तरह से यहाँ पे तो माता देवती को, ओ किंग ऑफ द डॉटर, मतलब आप राजघराने से हो। हाँ, तो राजघराने मतलब हम जानते हैं ना, जैसे जो व्यक्ति बहुत धनी होता है ये, तो उन लोगों को मतलब ऑलरेडी बहुत सारा अपना क्या कहते हैं, एक अहंकार होता है, क्योंकि जो राजघराने के होते हैं, इतना उनके पास धन है, इतना प्रसिद्धि है, राजा की पुत्री है। तो एक तरह से हमको ही कपिल देव जो भगवान है हमको बता रहे हैं, अगर आप भक्ति मार्ग में आए हो, हाँ, तो अगर आपको ज्ञान लेना है और उससे आपको परिवर्तन करना है, तो हमको भी क्या होना पड़ेगा, अपने हृदय में जो कुछ भी हमने सुना है या जो हम कर रहे हैं, उसको उसके विपरीत जो अभी हमको शुद्ध ज्ञान मिलने वाला है इस परंपरा में, उसको अपनाने के लिए हमको रेडी होना पड़ेगा। तो सब वी हैव टू फर्स्ट ऑफ ऑल एम्प्टी अवर कप। ये हृदय में जो कुछ भी अभी तक भरा पड़ा है उसको, ये तो हम सालों साल ज्ञान लेते रहेंगे, लेकिन उससे हमारा कोई परिवर्तन नहीं होगा। और ये इम्पोर्टेंट है कि जो ज्ञान हमको मिल रहा है, इट इज ऑथराइज्ड। ओके, जो हमको प्रभुपाद अभी जो देने वाले हैं, जो दिया है हमको प्रभुपाद ने, इट इज ऑथराइज्ड। तो क्योंकि वो ऑथराइज्ड है, तो वो जब हम अपने जीवन में लागू करेंगे, उससे परिवर्तन होना 100% श्योर है। सो
And by practicing this yoga system, one can become joyful. सुसुखम, जो भगवान भगवत गीता में कहते हैं ना कि ये जो ज्ञान है, राज विद्या राजगुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम प्रत्यक्षावगमम धर्म्यम सुसुखम कर्तुम अव्ययम। तो यहाँ पे भी भगवान वही बता रहे। तो अगर बारीकी से देखोगे, आप कोई भी शास्त्र पढ़ो, भागवतम, भगवत गीता, चैतन्य चरितामृत, ये सारे आप देखेंगे, वो घूम घूम फिर के ऑल द नॉलेज इज सेम, राइट। आप हर चीज आप मतलब भगवत गीता में कृष्ण ने यही बताया था अर्जुन को, जो अभी माता देवती को बता रहे हैं। तो देर इज नो कॉन्ट्रडिक्शन। अगर हम देखेंगे हर जगह, यहाँ पे भी वही बता रहे कि आप यू विल बिकम जॉयफुल। और वही उन्होंने बोला था अर्जुन को कि ये जो बहुत ही गुह्यतम जो ज्ञान है, ये इसमें क्या होगा, आपको सुसुखम कर्तुम अव्ययम, एंड आप प्रोग्रेसिवली यू विल एडवांस टुवर्ड्स द पाथ ऑफ एब्सोल्यूट ट्रुथ। तो पूरा आप देखेंगे अर्जुन को भी यही बता रहे भगवान भगवत गीता में, और यहाँ पे देवती माता को कपिल मुनि भी वही बता रहे। तो देर इज मतलब कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो जब हम परंपरा में एंड ऑथराइज जब ज्ञान लेते हैं, इन द एंड वी कम टू नो भगवान हर जब युग में आते हैं, हर भक्त को जब ज्ञान देते हैं, वही ज्ञान वो दे रहे। हो सकता है श्लोका अलग है, वर्ड्स अलग है, लेकिन कंक्लूजन वही है। भक्ति करो, आप आनंद में होंगे, आपको भगवत साक्षात्कार होगा। तो यहाँ पे जो अभी है, द योगा प्रोसेस एक्सप्लेन्ड बाय लॉर्ड कपिल मुनि इन दिस चैप्टर इज ऑथराइज्ड एंड स्टैंडर्ड, एंड देयरफॉर दिस इंस्ट्रक्शन शुड बी फॉलोड वेरी केयरफुली टू बिगिन द लॉर्ड। तो केयरफुली मतलब वही प्रभुपाद कहते हैं कि केयरफुली मतलब एक गुरु के शरण में लेके। तो ये सारा ज्ञान जब हम अपने वरिष्ठ, अपने जो परंपरा में जो गुरु है, और या हमारी शिक्षा गुरु है, उनके अंडर हमको ये लेना है। केयरफुली का मतलब यही है। ऐसा नहीं कि आपने अभी पढ़ लिया और मैं अब खुद अकेले में मैं इसको लागू करने वाला हूँ, नहीं। इसकी वजह से ये पूरा जो एसोसिएशन का महत्व यहाँ पे हमको पता चलता है। भले ही हमको ज्ञान यहाँ पे सब रेडीमेड है, लेकिन उसको कैसे अप्लाई करना है वेरी केयरफुली। तो केयरफुली का मतलब क्या है, टेकिंग शेल्टर ऑफ अ सीनियर डिवोटी, जैसे हमारे स्पिरिचुअल मास्टर, जैसे हमारे जो आप जिस कोई टेम्पल सेंटर से जुड़े हैं, वहाँ पे जो सीनियर है, उनके निर्देशन अनुसार, उनके being under his care. To begin, the Lord says that by yoga practice one can make progress towards understanding the absolute truth. और यहाँ पे अभी योगा मतलब प्रभुपाद हमेशा हमको बताते थे, जैसे हमको योगा का जो वर्ड आता है, हमको लगता है जैसे हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि ये आसन मतलब अनेक तरह के आसन, लेकिन द बिगेस्ट डेफिनेशन योगा मतलब अगेन जो जुड़ना, ओके। जैसे 2 + 2 = 2 मतलब 4, मतलब जो एडिशन हम लोग करते हैं, तो उसी तरह से सबसे इंपॉर्टेंट योग का डेफिनेशन है वापस भगवान से जो हम जुड़ते हैं। योगा युंजन सदात्मानम। तो यहाँ पे अगर हम भगवत गीता में भी प्रभुपाद मतलब भगवान वही कहते हैं योगा का डेफिनेशन, तो 6th चैप्टर में, तो भगवान से जुड़ना यही योग, अगेन reconnecting to the Lord. Okay, so to begin, the Lord says by yoga practice one can make progress towards understanding the absolute truth, the supreme personality of Godhead. In the previous chapter, it has been clearly stated that the desired result of yoga is not to achieve some wonderful mystic power. तो जितने भी ये जो अनेक योगी है जो सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, तो ये योग करने का अल्टीमेट गोल ये नहीं है, राइट। तो हमेशा हम योगा मतलब भक्ति योग जो हम कहते हैं, इसका मेन पर्पस क्या है, टू गेट कनेक्टेड टू द सुप्रीम लॉर्ड, ना कि कोई सिद्धि प्राप्ति करना। जैसे हमको पता है प्रभुपाद हमेशा कहते हैं अनेक तरह की सिद्धियां है, अनिमा, लघिमा, साष्टी, मतलब कुछ लोग ऐसे हैं जो योग सिद्धि के ऊपर कैन बिकम लाइटर देन इवन, मतलब कॉटन से भी एकदम लाइट हो सकते हैं, जो हवा में उड़ सकते हैं। क्योंकि अगर आप देखेंगे कॉटन इतना लाइट है, वो आराम से हवा में उड़ सकता है। तो ये सिद्धि भी प्राप्त कर सकते हैं। फिर आप चाहे तो एकदम
अपने शरीर को एकदम वजनदार बना सकते, पहाड़ जैसा, मतलब आपको कोई उठा नहीं पाएगा। फिर आप किसी भी प्लेनेट में जा सकते हैं, ये इस तरह का भी एक योग सिद्धि है। मतलब यू कैन जस्ट ट्रेवल टू एनी प्लेनेट। तो इस तरह से बहुत सारे सिद्धियां हैं, और ऐसे सिद्धियां दिखा के बहुत सारे योगी जो है लोगों को आकर्षित करते हैं, और इतना आकर्षित करते हैं कि लोग उनको भगवान समझते हैं। और ये जो प्रभुपाद का एक लीला है जो हमने बहुत बार सुना होगा। तो एक बार एक प्रभुपाद के जो शिष्य है उन्होंने आके प्रभुपाद को बताया कि एक योगी है जो पानी पे चल सकता है। मतलब जैसे यू कैन बिकम लाइटर, जैसे मैंने कहा ना आप कॉटन जैसे, तो अगर आप लाइट हो, मतलब एकदम आप हल्के हो गए, तो पानी पे भी आप चल सकते हो। तो उन्होंने आके प्रभुपाद को बताया कि एक योगी है जो पानी पे भी चल सकता है। अभी उनका भाव क्या था, वो प्रभुपाद समझ गए। मतलब उनका भाव था, वो उस योगी को प्रभुपाद के साथ कंपेयर कर रहे थे। वो उस योगी का गुणगान तो कर रहे थे, लेकिन साथ ही साथ ही वाज ट्राइंग टू कंपेयर दैट योगी विद प्रभुपाद, कि प्रभुपाद मतलब आप प्रचार कर रहे हो सब ठीक है, लेकिन आपके पास ऐसे कुछ सिद्धियां है क्या, राइट? तो तो प्रभुपाद को उनका भाव समझ में आया। तो प्रभुपाद ने उनको एक ही सुंदर एक वाक्य बताया कि अभी वो पानी पे चल सकता है, राइट? ओके, वो किसी और को उसके साथ मतलब लेके जा सकता है क्या, मतलब वो पानी पे चल के पार कर सकता है, राइट? वो और उसने अपना पूरा जीवन जो है, मतलब वो एक योग सिद्धि प्राप्त करने के लिए अपना पूरा जीवन उसमें डाल दिया। और वही काम जो है, अगर मैं नाव में बैठूंगा और वो नाव वाले को अगर एक 25 पैसा दूंगा, तो मैं अकेला नहीं, मैं आप लोगों को भी उस नाव में बिठा के पार कर सकता हूँ। तो 25 पैसे का जो काम है, उसने अपना पूरा जीवन उसमें डाल दिया टू जस्ट अर्न दैट एक सिद्धि जो 25 पैसे में हो जाता है काम। क्योंकि वो क्या कर रहा है, केवल पानी में चल सकता है, राइट? उससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकता, और वो भी अकेला। और मैं तुम लोगों को एक ऐसा मैंने प्रोसेस दिया है, भक्ति प्रोसेस, जिसमें आप इस भव सागर को पार कर सकते हो, कि मतलब अकेले नहीं, मतलब सब लोग आप कर सकते हो इस भव सागर से। तो प्रभुपाद ने उनको ये समझाया। तो ये सारे सिद्धियां जो है, इट इज मटेरियल। मतलब इससे आप थोड़ा बहुत चमत्कार कर सकते हो, थोड़ा बहुत आपको अच्छा लगेगा, लेकिन वो इन द जैसे बोलते हैं ना, फाइनली आपको उसका कोई काम नहीं है, क्योंकि इस योगी का भी एक ना एक दिन उस देह को छोड़ने वाला है। तो वो देह छोड़ के उस इमीडिएटली जैसे वो शरीर छोड़ देता है, वो सिद्धि भी उसकी वहीं पे समाप्त हो जाएगी, और वो यहीं पे मतलब भौतिक जगत में रह जाएगा। तो कुछ फायदा हुआ क्या? और उसने पूरा जीवन अपना वो 25 पैसा, मतलब वो प्रभुपाद वही बताते हैं, मतलब वो पानी पे एक फ्रॉम एक तट से दूसरे तट जाने के लिए नाव वाला आपसे 25 पैसा लेके आपको वो पार करा देगा। उसके लिए आपको इतना अपना जीवन खपा के वो पानी पे चलने का सिद्धि प्राप्त करके क्या फायदा? और प्रभुपाद ने हमको ऐसा प्रोसेस दिया है कि केवल आप नहीं, आपके साथ जितने भी लोग हैं जो उसको फॉलो करेंगे, वो भव सागर पार कर सकते हैं। तो ये योगा का एक्चुअल मतलब जो भक्ति योग हम लोग क्यों कर रहे हैं, कोई सिद्धि प्राप्त करने के लिए नहीं। मतलब इस भव सागर को हम अगर पार कर मतलब पार करने का इसमें शक्ति है। तो वन शुड नॉट बी अट्रैक्टेड बाय सच मिस्टिक पावर, but should attain progressive realization on the path of understanding the supreme personality of Godhead. This is also confirmed in Bhagavad Gita, which states in the last words of the 6th chapter that the greatest yogi is he who constantly thinks of Krishna within himself, or he who is Krishna conscious. तो जो प्रभुपाद बता रहे, जो लास्ट श्लोका है, योगी नाम अपि सर्वेशम मद गति नांतर आत्मना श्रद्धावान भजति यो मां समय युक्तो ममता। तो भगवान ट्रांसलेशन में क्या बोलते हैं, प्रभुपाद लिखते हैं, among the and of all the yogis, the one with great faith who always abides in me, thinks of me within himself, and renders transcendental loving service to me, is the most intimately united with me in yoga and is the highest of all. That is my opinion. तो यहाँ पे प्रभुपाद भगवान ये नहीं बोल रहे कि वो योगी जो पानी पे चल सकता है या किसी और एक ग्रह में जा सकता है या कुछ चमत्कार दिखा सकता है या सालों साल एक ही जगह बैठ के
तपस्या कर सकता है, ऐसा नहीं बता रहे। भगवान क्या बोल रहे, जो पूरे श्रद्धा के साथ मेरी भक्ति करता है, जो हमेशा मेरा चिंतन करता है और मुझे प्रेम पूर्वक दिव्य जो मेरी सेवा करता है, वो हमेशा मुझसे जुड़ा है, इंटीमेटली यूनाइटेड। तो योगा यानी टू गेट यूनाइटेड विद द लॉर्ड। वो भी कैसे, इन इन ट्रांसेंडेंटल लविंग सर्विस। खाली ऐसा नहीं जुड़ना है मतलब भगवान के साइड में जाके खड़ा नहीं, जुड़ना मतलब इन ट्रांसेंडेंटल लविंग सर्विस। जैसे हम लोग अभी कोई मोदी आ गया तो हम लोग क्या करते हैं, सीधा जाके साइड में रखते हैं और बोलते हैं फोटो निकालो या सेल्फी निकालो, तो बोलते हैं देखो मैं मोदी के साथ था। तो भक्ति मतलब ऐसा नहीं कि आप कोई वृंदावन धाम में गए, वहां पे कृष्णा बलराम श्री श्री राधा श्याम सुंदर गौर निताय के साइड में रुके, सेल्फी निकाला, सी आई एम यूनाइटेड विद कृष्णा मैं योगा प्रैक्टिस कर रहा हूँ, और सेल्फी निकाला, आई एम यूनाइटेड। ये यूनाइट वहां पे जाके जब आप धाम में जाके गोवर्धन परिक्रमा करते हो, धाम में सेवा करते हो, भगवान का जप करते हो, जप करना भी बहुत बड़ी सेवा है। तो इस तरह से जब आप भगवान से जुड़ते हो, और वो भी कैसे, प्रेम पूर्वक, ट्रांसेंडेंटल लविंग सर्विस, ही इज मोस्ट इंटीमेटली यूनाइटेड विथ मी एंड ही इज द हाईएस्ट ऑफ ऑल। तो ऐसे जो भक्त है, ये सबसे हाईएस्ट योगी है, राइट। तो भगवान बता रहे हैं कि कैसे उनके साथ हम जुड़ सकते हैं। और सबसे हाईएस्ट योगी कौन है, ये 6th चैप्टर का 47 जो अंत होता है 6th चैप्टर का, तो 47 श्लोक का भगवान बताते हैं हु इज द हाईएस्ट। इट इज स्टेटेड हियर दैट बाय फॉलोइंग द सिस्टम ऑफ योगा वन कैन बिकम जॉयफुल। तो ये बार बार मतलब हम भक्ति जो कर रहे हैं ना, हम सब लोग आनंद की खोज में है। तो ये जो भक्ति का जो योगा है, जो कोई भी इसको फॉलो करेगा वो हमेशा आनंद का अनुभव करेगा, राइट। हर कोई चाहता है ना आनंद, परमानंद। किसी को भी पूछो, आप सब लोग यही बताते हैं कि हाउ टू बिकम हैप्पी, मैं हाउ टू बिकम हैप्पी, सूत्रास ऑफ लाइफ। बहुत सारे लोग मोटिवेशनल स्पीकर्स, हाउ टू बिकम हैप्पी, द 5 सूत्रास, 10 सूत्रास, तो ये सारे सूत्र हम लोग ढूंढ रहे। तो भगवान बता रहे इसका सबसे इम्पोर्टेंट है भक्ति योगा में आप आइए, भगवान की सेवा कीजिए। The Lord Kapila, the personality of Godhead, who is the highest authority on yoga, here explains the yoga system known as Ashtanga Yoga, which comprises of 8 different practices, namely Yama, Niyama, Asana, Pranayama, Pratyahara, Dharana, ध्यान एंड समाधि। तो अब ये समाधि जो है ना, तो इसका अर्थ क्या है समाधि मतलब, तो जब एक भक्त इवन जब भगवान का अर्च विग्रह का सेवा कर रहा है या जप कर रहा है या भगवान के लिए भोगा बना रहा है या कोई भी सेवा कर रहा है, और उस सेवा में जो पूरी तरह से लीन होता है ना, इवन ऐसा मत सोचे कि माता लोग जो कुकिंग कर रहे हैं तो मतलब वो एक नॉर्मल सेवा है, और समाधि मतलब जो एक व्यक्ति जंगल में बैठा है, और पूरी तरह से ना हिल रहा है ना डुल रहा है, और केवल सांस लेके मतलब उसको कुछ मतलब पूरी तरह से एकदम क्या कहते हैं समाधि में जो कहते हैं ना, केवल वो समाधि है ऐसा नहीं है। इवन जब माताएं या प्रभु जो भी जब भगवान के लिए भी जब भोग बनाते हैं ना, और जिस तरह से वो लोग पूरी तरह से भगवान का चिंतन करके वो कार्य कर रहे हैं, वो भी समाधि है। हाँ, तो कभी कभी हमको लगता है समाधि मतलब केवल एक जगह बैठ के ध्यान, वो देखो क्या ध्यान में उसके सामने मतलब कौन आया कौन गया कुछ उसको कुछ पता भी नहीं चल रहा है। हाँ, तो इसको केवल इसको समाधि मत सोचिए। और वो केवल और वो अगर प्रभुपाद जैसे आगे यहाँ पे लिखते हैं कि अगर लेकिन वो चिंतन किस पे कर रहा है, मतलब सब कुछ शून्य है, तो क्या फायदा उस समाधि का। वो उसका चिंतन क्या चल रहा है कि भगवान नहीं कोई नहीं, आखिर में सब कुछ शून्य है, या फिर भगवान का कोई आकार नहीं है, वो निराकार है। इस तरह का अगर वो चिंतन करके समाधि कर रहा है तो इट इज अगेन वेस्ट ऑफ टाइम, राइट। तो जैसे कि एक बच्चा कल मानो मैथ्स का पेपर है, ओके, मैथ्स का पेपर है और वो इंग्लिश लेके बैठा है और पूरा 24 आवर्स रात को बिना सोए पढ़ रहा है, कोई फायदा है क्या ऐसे इस तरह से पढ़ाई करके। अगले दिन जब जाएगा टीचर बोलेगी मैथ्स का पेपर, तो वो बोलेगा अरे मैथ्स का पेपर, मैंने तो कल पूरा इंग्लिश पढ़ाई की है, तो क्या फायदा है। तो उसी तरह से जब हमको पता नहीं कि जीवन का उद्देश्य क्या है और हम समाधि के नाम पे निराकार या शून्यवादी इस तरह का हम लोग अपना पूरा जीवन खपा देंगे,
तो इट इज लाइक एंड ऑफ द टाइम, जब आखिर समय हम क्या होगा, उसका कोई फल हमको नहीं मिलेगा। तो एक्चुअल समाधि मतलब हर जो कार्य हम कर रहे हैं भगवान के लिए, आप चाहे वो फिर अर्च विग्रह की सेवा हो, भगवान के लिए भोगा बनाना हो, जप करना हो, उसमें जब हम पूरी तरह से भगवान का चिंतन करते हुए जब हम कार्य करते हैं, वो एक्चुअली समाधि है। तो हर जो हम अपना अपना अलग अलग जो काम कर रहे हैं उसमें बार बार भगवान का जब चिंतन होता है, दैट इज एक्चुअली समाधि। तो ऐसा मत सोचिए समाधि मतलब केवल वही है जो योगी मतलब जो अष्टांग योग कर रहे हैं। इवन अगर देखेंगे हिरण्यकशिपु, उसने करोड़ों साल तपस्या की और ऐसा तपस्या किया कि ब्रह्मा जी को स्वयं आना पड़ा। तो ऐसे समाधि का क्या फायदा, क्योंकि जब ब्रह्मा जी उसके सामने प्रकट हुए तो उन्होंने क्या मांगा, उन्होंने अमर होने का वर मांगा और भगवान से बड़ा होने का वर मांगा। तो ऐसे समाधि से क्या फायदा। तो रियल समाधि मतलब भगवान के सेवा में जब हम पूरी तरह से अपना मन बुद्धि अपना इवन अहंकार, जब उसमें जो ट्रू ईगो, मिथ्या अहंकार नहीं, जो सच्चा अहंकार कि मैं भगवान का दास हूँ, ये जब भगवान के लिए हम पूरी तरह से उसको डालते हैं भगवान की सेवा में, दैट इज एक्चुअली समाधि। तो जब भी हम अभी किसी को देखते हैं माताओं को या प्रभुओं को भगवान के लिए भोग बना रहे, तब तब भी समझना कि या ही इज ऑल्सो इन समाधि। कोई अर्च विग्रह का पूरी तरह से ध्यान पूर्वक, राइट, ध्यान पूर्वक सेवा कर रहे, ही इज ऑल्सो इन समाधि। एक व्यक्ति पूरी तरह से एकदम ध्यान पूर्वक जप कर रहा है, ही इज ऑल्सो इन समाधि। कोई भी प्रभु जी मंदिर में या कोई अपने सेंटर में ध्यान पूर्वक मतलब भगवान की प्रसन्नता के लिए झाड़ू पोछा लगा रहा है, ही इज ऑल्सो इन समाधि। तो ये एक्चुअल समाधि है, ना कि केवल बैठ के औरों की तरह हम लोग किसी शून्य पे या निरंकार पे ध्यान लगा के बैठे हैं, या केवल क्या बोलते हैं सांस ले रहे सांस छोड़ रहे। तो समाधि मतलब एक्चुअल समाधि इज दिस, बाय ऑल दिस स्टेज ऑफ प्रैक्टिस मस्ट रियलाइज लॉर्ड विष्णु। तो ये पे प्रभुपाद वही लिखते हैं, जो भी आप कर रहे हैं अंत में हमारा भगवान का साक्षात्कार होना 100% जरूरी है। ओके, तो देयर आर सो कॉल्ड योगा प्रैक्टिसेस व्हिच वन कंसंट्रेट्स ऑन माइंड ऑन, जैसे अभी हमने डिस्कस किया शून्यवाद या निराकारवाद, बट इट्स नॉट अप्रूव्ड बाय द ऑथराइज्ड योगा सिस्टम एज एक्सप्लेन्ड बाय कपिल देव। इवन पतंजलि explains that target of yoga is Vishnu. Ashtanga yoga is therefore part of Vaishnava practice because it is ultimate goal is realization of Vishnu. तो यहाँ पे प्रभुपाद सुंदर कहते हैं कि जो हम अष्टांग योग भी अगर करें तो इट विल बी ऑथराइज ओनली अगर एंड रिजल्ट क्या है, भगवान का साक्षात्कार अगर हमको होता है। ओके, जो भी चीज हम कर रहे हैं ओके, वो ऑथराइज तब होता है जब उसमें इन द एंड भगवान का साक्षात्कार होता है। The achievement of success in yoga is not acquisition of mystic power. ये हमने भी डिस्कस किया। हाँ, कोई सिद्धि प्राप्त करने के लिए नहीं है या कोई बड़ा पोजीशन प्राप्त करने के लिए नहीं है या इवन लाइक ब्रह्मा जी बनने के लिए भी नहीं है, विच इज कंटेम्ड इन प्रीवियस चैप्टर। और इसका जो कपिल देव ने प्रभुपाद लिखते हैं, जो पहले हमने जो इसके पहले का अध्याय में खंडन इसका किया हुआ है, बट rather freedom from all material designation and situation in one's constitutional position. That is the ultimate achievement in yoga practice. तो the main achievement in yoga practice क्या है, अपने सारे भौतिक जो उपाधि है उससे मुक्त होना और अपना जो एक्चुअल पोजीशन है नित्य कृष्ण दास उसमें स्थित होना, और उससे भी ज्यादा उससे भी बढ़कर है दासानु दासानु दास, मतलब भगवान के दास। ये तो अच्छी बात है, लेकिन उससे भी बड़ा पोजीशन है भक्तों के दासों के दासों के दासों के दास बनना। क्योंकि जब हम भक्तों के दासों के दासों के दास बनते हैं ना, दिस गिव्स भगवान को और ज्यादा आनंद इसमें मिलता है। क्योंकि भगवान की भक्ति मतलब भगवान के दास तो बनने के लिए कोई भी रेडी हो जाएगा क्योंकि वो भगवान है, राइट। लेकिन भगवान के जो भक्त है उनका जब दास बनते हैं हम, क्योंकि क्या होता है भक्तों के बीच में भी कंपैरिजन होता है ना कि अरे ये मुझसे बड़ा भक्त नहीं है, मैं इससे बड़ा भक्त हूँ, तो फिर हम लोग उसके सेवा करना या हम लोग को हमारा अहंकार बीच में आ जाता है। लेकिन एक शुद्ध भक्त क्या है, वो अपने आप को छोड़ के बाकी सब लोगों को जो है भक्त समझता है, वो भी शुद्ध भक्त, और उनकी जब सेवा करता है दैट इज, इसका मतलब क्या है, मतलब वो पूरी तरह से अहंकार मतलब मिथ्या अहंकार से मुक्त है।
आप ट्राई करके देखिए, इतना आसान नहीं है। किसी औरों का मतलब भक्तों का सेवा करना, हाँ, जो सीनियर प्रभुपाद के डिसाइपल आ गए या किसी बड़े सेंटर के बड़े-बड़े प्रीचर है, उनका तो हम इज़िली कर लेंगे क्योंकि हमको पता है ना, हम रोज़ यूट्यूब में उनका वीडियो देखते हैं और हमको पता है ये तो प्रभुपाद के डिसाइपल है। उनका तो हम लोग मतलब अगर मिल गया मौका तो हम लोग एकदम पूरी तरह से सेवा करने के लिए रेडी हो जाएँगे। लेकिन हम लोग जब अपने-अपने बीच में जो रोज़ हम लोग जो मिलते हैं एक-दूसरे से, उन लोगों का आप सेवा करना शुरू करो। मतलब दासों का दास सोचिए, हाँ। और वो भी पूरे हृदय के साथ, तब पता चलता है कितना अहंकार हमको ये क्या कहते हैं, मतलब हमको लगता है कि इसने तो मेरी सेवा करनी चाहिए। इससे इससे ज़्यादा तो माला मैं करता हूँ, इससे ज़्यादा तो सेवा मैं करता हूँ, इससे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं लेता हूँ। इस और तब हमको एक्चुअली पता चलता है कि एक जो रियल ये जो गोपी भक्त पद कमली और दास दासानुदास कितना टफ है। और और हम लोग बार-बार सुनते भी है ये, मतलब हर एक भक्त का हमको दास बनना है, उनका जो है क्या कहते हैं सेवा करना है, लेकिन एप्लीकेशन में बहुत प्रॉब्लम हो जाता है, राइट? थियरी एकदम सबको पता है, थियरी एवरीबॉडी इज़ क्लियर। जो प्रैक्टिकल में जो है वहीं पे फेल हो जाते हैं हम। प्रैक्टिकल में वो हमारा जो अहंकार है ना, हमको पूरी तरह से जो मात दे देता है। हाँ? सो हमारे पास जो है हेड नॉलेज है, यहाँ पे तो है लेकिन यहाँ तक उतरता ही नहीं। वो जैसे बोलते हार्ट अटैक कब आता है? वो वेन्स ब्लॉक होते हैं ना, तब हमको हार्ट अटैक आता है ना। तो उसी तरह से यहाँ ना हमारा पूरा जो वेन है वो ब्लॉक है। तो यहाँ तक नॉलेज आ जाता है लेकिन हृदय में उतरने के लिए बहुत प्रॉब्लम। तो उसका एक मतलब उसका एक ही सर्जरी है। नम्रता। इसलिए कहते हैं ना इस परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज की ह्यूमिलिटी इज नॉट पार्ट ऑफ डिवोशन, इट इज हार्ट ऑफ डिवोशन। तो हम सब लोग हार्ट पेशेंट है। बहुत अटैक आता है हमको, हार्ट अटैक। वो नम्रता पालन करने में। तो तो तब जो है एक्चुअली ये कपिल मुनि यही बता रहे हैं कि ये जो है पूरा ऑथराइज्ड है। हम जो भागवतम श्रीमद् भगवत गीता ये पूरा ऑथराइज्ड नॉलेज है। इसको हम लोग फॉलो करेंगे तो हमको और कोई सोचने का जरूरत नहीं। इट इज जैसे कहा गया है, इसको फॉलो करेंगे देन वी विल प्रैक्टिस भक्ति परफेक्टली। और इससे हम लोग भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं और अपने जो अपना जो स्वरूप है कृष्ण नित्य दास एंड दासानुदास, उसमें हम स्थित हो सकते हैं। और अगर इस हो गया तो वही वी विल बी जॉयफुल। जो आनंद का खोज हम लोग कर रहे हैं, यहाँ पे हमारा वो जो आनंद का खोज समाप्त होगा क्योंकि हम हमेशा आनंद में रहेंगे। सुसुखम कर्तुम अव्ययम। हरे कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये बहुत अच्छा अध्याय है क्योंकि इंस्ट्रक्शन हाउ टू परफॉर्म तो देवती माता के द्वारा कपिल मुनि हमको बता रहे हैं। और वो हमारे हृदय में जाने के लिए हमको अपने हृदय में जो कुछ भी कंटेमिनेटेड नॉलेज या जो कुछ हमारा पहले का उसको सब क्लियर करना पड़ेगा। तब ये शुद्ध ज्ञान जाने के लिए जगह बनेगा और फिर हम उसको उसको जीवन में उतारना भी है। तो ये कह के मैं रुकता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। शिला प्रभुपाद की जय। वंदे मातरम। वैष्णव